Hello everyone, welcome back in this lecture about the advanced input types and the form features. So today is our lecture 12 in the full stack web development course. So in this lecture we will explore the advanced input types and the form features in the HTML offers to create user-friendly and the functional form. So let's enhance the interactivity of your form. So, explaining the advanced input type, HTML5 introduce new input types like color picker, date selector, and the range slider. They simplify user input for a specific data type. So, firstly, mm, go to the advanced input type. I'm explaining the firstly what is the HTML forms. Like I told you before in the previous lecture, what is the HTML form? But still, I'm again explaining the HTML form. It is a section of a web page that allow user to input data, which is then sent to a server for processing. Okay, and how do user interact with the HTML forms? So user fills out the form by entering text, selecting options or uploading the files. So now advanced input types क्या होता है? What is advanced input types? Advanced in, Advanced input types are input types in HTML that are used to create interactive web forms. They provide a structure for collecting data that can be used by the web page or sent to a server. Example of advanced input types: first, date and time. Date and time picker allow user to enter date and time information. Search, a text field for entering a search string. And third one is a URL, a field for entering a URL that is automatically validated before the form can be submitted. Color, fourth, an input type for entering a color, and the and the other input types: text field, checkboxes, radio buttons, slider, range input, password files, email fields, and a file upload and drop down list, and a submit button, and so on. And the type attribute in the input element control the data type of the element. So uh, here introduce new input types introduced in HTML5. Here you can see introduce new input types introduced in HTML5. So HTML5 क्या है? ये हम तो HTML पढ़ा था जिसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. तो HTML5 है क्या ये? कोई नहीं, मैं बताती हूँ आपको HTML5 के. HTML5 is a hypertext markup language 5. सेम एज फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो पता है HTML होता है. HTML5 भी सेम है. HTML की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब HTML5 की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 है बस. And it is a markup language used for structuring and presenting hypertext documents on the world wide web. It was the fifth and the final major HTML version that is now a retired World Wide Web Consortium. W3 भी कहते हैं इसको. The recommendation, the current specification is known as the HTML Living Standard. हमने तो अब पढ़ लिया इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में. अब पढ़ते हैं एक्चुअल में है क्या है. HTML5 is the newest version of your HTML. HTML5 के स्टैंडर्ड वर्जन है HTML का, and the only recently gaining partial support by the makers of web browser. And
It incorporates all the features from earlier version of HTML, including the stricter XHTML. It it adds a diverse set of new tools for the web developer to use. It is still a it is still a work in the progress. No browser have full HTML5 support. It will be many years, perhaps not until 2018 or later, before being fully defined and the supported. अब हमें आ चुका है समझ में कि HTML5 होता क्या है. So here syntax. अब क्या है ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्म है HTML का. This is a form, HTML form. Your first name, your last name and the submit button. Enter your first name. It is a your placeholder. एक्चुअली हमें बताएगा कि हम यहाँ पे लिखना क्या है. हमें आपको इंटीजर वैल्यू नहीं लिखनी है. आप लिखा एंटर योर फर्स्ट नेम मीन्स योर मतलब कि यहाँ पे आइए स्ट्रिंग आई कैरेक्टर्स आएंगे. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे. स्ट्रिंग आएगा. एंटर योर फर्स्ट नेम. सेम एज फॉर द लास्ट नेम. सो हमने ये फिल कर दिया. फर्स्ट नेम is Reshmi, last name is your Sharma. Then click on it button submit. हो गया फॉर्म सबमिट हो चुका है. अब पढ़ते हैं हम कुछ सिंटेक्स है. इनपुट टाइप कलर क्या है. इनपुट टाइप है. इनपुट टाइप क्या है. कलर है. नेम फेवरेट कलर फैव कलर लिखा है हमने. FAVCOLUR. You can see here. और सो नेक्स्ट है इनपुट टाइप क्या है. डेट. नेम क्या है. डेट ऑफ बर्थ DOB. और द नेक्स्ट वन इज अ इनपुट टाइप. टाइप क्या है. डेट टाइम. लोकल. नेम क्या है. अपॉइंटमेंट. सो इनपुट टाइप रेंज है. मिनिमम 1 मैक्सिमम 100 स्टेप 10. सो URL के लिए भी सेम है भैया. इनपुट टाइप टाइप क्या हमारा URL. प्लेस होल्डर क्या है. एंटर योर वेबसाइट मतलब कि वेबसाइट का लिंक है क्या है ना. वेबसाइट इसके हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका लिंक ऑब्वियसली होता ही है. अब क्या होता है एक चीज हम देखते हैं. URL का फुल फॉर्म क्या होता है. एक्चुअली URL है क्या ये. URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अब ये है क्या. चलो हमने फुल फॉर्म तो जान लिया. इसके बारे में भी हम कुछ चीजें जानते हैं. एक्चुअली है क्या ये. हम हर जगह पढ़ते हैं URL अपलोड. ये URL सर्वर वेब क्या है क्या ये. तो द फुल फॉर्म ऑफ द URL इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL serves as a web address. ये हमें एक वेब एड्रेस देता है that identify the location of a specific resource on the internet such as web page, image और document. अब जैसे कि हम किसी भी इमेज का हम एड्रेस कॉपी करते हैं वो भी एक्चुअली URL ही है. ये हमें वो बताएगा इंटरनेट पे वो कहाँ पे एक्चुअल में वहां कहाँ पे वो है कहाँ एग्जिस्ट करती है. सो ये हमारा URL होता है. हम देखते हैं यहाँ पे चीज पढ़े. So here explain their practical applications like using color for choosing a theme or date for booking system. This is your submit button. ऐसे होता है सबमिट बटन है ना. So स्पेशल एट्रीब्यूट्स क्या है अब ये भी पढ़ना है ना. तो स्पेशल एट्रीब्यूट्स क्या है. एड एट्रीब्यूट्स टू एनहेंस इनपुट फील्ड्स. सो फर्स्ट है ऑटो फोकस. ऑटो फोकस पहले हम फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन देन मूव ऑन द सिंटैक्स. डेफिनेशन क्या है. द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली focuses an element such as input or text area when the page loads, placing the cursor in it. I think it's clearing now. So use क्या है भैया इसका. improves user experience by directing attention to the most relevant field.
समझ लिया हमने ऑटो फोकस क्या है. देन सी द सिंटेक्स ऑफ द ऑटो फोकस. सो यह इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर क्या, एंटर योर नेम इज ऑटो फोकस. सेम है नॉर्मली, बट यहाँ पे ऑटो फोकस लिखा है. सिंपल है. देन अब करते हैं रीड ओनली की तरफ. So read only is defined as the makes an input field non-editable, allowing user to view value but not modify. ठीक है, modify नहीं होगा वो, नहीं editable होगा. So use क्या है, often used for field like pre-filled data or calculated value. So here syntax देखते हैं. So open here, input type क्या है, text है, टाइप क्या टेक्स्ट है, और वैल्यू रीड ओनली टेक्स्ट रीड ओनली. सो थर्ड वन इज अ डिसेबल्ड. So disable attribute disables the input field, making it uneditable, unclickable, and preventing its value from being submitted with the form. What is use of it? Used for a field that are temporary or permanently unavailable. Okay. सो हियर सी सिंटेक्स. इनपुट टाइप क्या टेक्स्ट है, तीनों में टाइप क्या था, सेम था. अगेन सी टाइप इज टेक्स्ट. हियर और फोटो फोकस में टाइप इज टेक्स्ट है ना. एंड द वैल्यू क्या है इसकी, डिस्कार्ड फील्ड एंड द डिसेबल्ड. अब इसके कुछ ना, अब जो हमने पढ़ा उसको हम फास्ट से सम अप करते हैं, क्या है क्या ये. सो ऑटो फोकस इज एडिटेबल और नॉट. Yes, autofocus is editable. ऑटो फोकस में ऑटो फोकस के मतलब ऑटो फोकस में उसके नाम में फोकस है तो वो फोकस है. एंड सबमिटेड विद फॉर्म, यस ऑटो फोकस हाँ है. एंड द रीड ओनली इज एडिटेबल और नॉट, रीड ओनली इज नॉट एडिटेबल. एंड द फोकस है और सबमिटेड विद फॉर्म है वो भी है. एंड द डिसेबल इज एडिटेबल और नॉट, नो डिसेबल इज नॉट एडिटेबल. फोकस भी नहीं है और सबमिटेड विथ फॉर्म भी नहीं है. आई थिंक इज क्लियरिंग नाउ बेटर विथ की डिफरेंस ऑफ इट. So grouping related inputs is our third topic. Grouping related inputs demonstrate field set and the legend for better structure. Demonstrate field set legend for better structure. अब grouping related inputs क्या है? So what is the meaning of it? Grouping related inputs in a form makes it easier for users to understand the form and focus on a smaller group of controls. You can group inputs using HTML elements like field set and legend. Like I told before, here you can see field set your legend. Okay. We can also use CSS to visually group inputs. So, HTML elements. So first the field set. Field set a container that groups related input and create a visible border around them. You can use field set to separate section of the form, like contact information of survey questions. Okay. Here and the region क्या है अब? A heading that identify a group of input. For example, you can use a legend to a label a group of checkboxes as optional. Okay. So yeah, field set. Now you can see easily syntax of it. Field set opening here. Legend क्या personal information और label में for name name. लेबल क्लोज हो गया है. अब क्या है, इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है, आईडी नेम है, बी नेम ही है.
Then for breaking the next line BR क्या होता है एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था होता क्या है पोस्ट द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ओके मैं आपको बताती हूँ आई एम टेलिंग यू be a tag for actually insert a single line break. The BR tag is useful for writing the addresses or poems and it is empty tag which means that it has no end tag. जिसकी यहाँ पे हर चीज को ओपनिंग के साथ क्लोजिंग भी है. You can see here easily. Yeah. यहाँ हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमने क्लोज भी किया है राइट बट बी आर का ओपन क्या है क्लोजिंग टैग नहीं है इसका कोई एंड टैग नहीं है एंड या लेबल में फॉर ईमेल के लिए ईमेल लेबल जैसे कि यहाँ पे भी है देखो है ना इनपुट टाइप ईमेल ईमेल नेम क्या ईमेल देन क्लोज द फील्ड सेट अब आता है भाई यूजिंग द डेटा लिस्ट फॉर ऑटो कंप्लीट क्रिएट अ ड्रॉप डाउन विद सजेशंस ड्रॉप डाउन मेन्यूज के लिए यूज किया जाता है सो डेटा लिस्ट टैग क्या है एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा लिस्ट टैग so it is used to provide an autocomplete feature for input elements. Users will see a drop-down list of predefined options as the input data. The data list elements ID attribute must be equal to the input elements list attribute. This is binds them together. हो गया अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है एक्चुअली हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली तो व्हाट अबाउट द सिंटेक्स दिस द सिंटेक्स इनपुट लिस्ट क्या है अब ब्राउजर है ना नेम ब्राउजर नेम ब्राउजर है लिस्ट ब्राउजर है और प्लेस होल्डर चूज अ ब्राउजर एंड द डेटा लिस्ट ओपनिंग हियर एंड द क्लोज हियर आईडी ब्राउजर ऑप्शन क्या है ड्रॉप डाउन मेन्यूज के अंदर है जैसे कि हम किस हाँ you can see here on the left side so here यहाँ कुछ हमें लिखना है और ये हम अभी फर्स्टली हमें ये चीज नहीं दिख रही होगी ये चीज नहीं दिखी होगी so firstly click on it then you can see these four options first is a Google Chrome here I am writing the short form here and the MF for Mozilla Firefox. As for Safari E for Edge, these are the options for the drop-down menus. Okay, I think this is clearing now better. So, demonstrating the practical example now. Now let's build a survey from survey form that utilizes the advanced input types, groups related field and provide drop-down suggestions with the data list. So create the survey form now. Open your the VS Code here. This is my VS Code. These are yesterday's code actually. Simple form हमने create किया था. Then create the file. Write the 11th code.html. Okay. So here I'm writing just a minute. Now 11th dot 11th code dot html here cross it here also cross shift exclamation mark then press the enter. This is your boilerplate for html. I am writing the survey form instead of the document. Survey
फॉर्म। ओके, देन बॉडी में हम क्या लिखेंगे हर बार की तरह H1 टैग हेडिंग सर्वे फॉर्म। You can also copy here, then paste here. Okay. Smart hard work plus में smart work. So here हमें करना चाहिए actually form. Action में क्या आएगा? अभी हम नहीं लिख रहे हैं एक्शन वगैरह, छोड़ो। फॉर्म फील्ड सेट, फील्ड set, then the legend suggestions are given, then move on like this, then press the enter. Legend personal detail, personal details, ये actually tag है, don't write like this, complete, हाँ, personal details, then label for name, then write here name. ओके, देन द लेबल हो गया। अब क्या करना है? इनपुट, इनपुट टैग, टाइप क्या है? टेक्स्ट ही है, ठीक है। देन आईडी नेम हो गया, नेम भी हमारा नेम ही होगा। नेम भी नेम ही है, नेम है, ठीक है। देन द प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम आएगा। enter your name, okay, then required, then br, again br, ओके, हो गया ना? हाँ, अब क्या है? हमें लेबल लिखना है फिर से। अब हम किसके लिए बना रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ के लिए। 4 क्या है? DOB, है ना? अब यहाँ लिखेंगे हम डेट, राइट इन कैपिटल, डेट ऑफ बर्थ। हो गया। देन इनपुट, टाइप टेक्स्ट, टाइप क्या रखते हैं हम? डेट रखते हैं हम। एक्चुअली हमें डेट करना है, अभी हमें टेक्स्ट लिखवाना नहीं है। हम यहाँ पे एक डेट सिलेक्टर बना रहे हैं, जैसे कि एक कैलेंडर आता है, उसमें से हम डेट सिलेक्ट करते हैं, वो हम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली। आईडीज DOB, डेट ऑफ बर्थ ही करना है हमें। देन नेम में भी DOB आएगा, DOB। देन BR, अगेन BR, डन। देन लेबल, लेबल लिखते हैं अब हम। फॉर में क्या आएगा? डेट ऑफ बर्थ। सो राइट, जस्ट अ मिनट, DOB, हाँ, डेट ऑफ, सॉरी, फेवरेट कलर, फेव कलर, फेवरेट।
देन इनपुट टाइप क्या होगी, अब डेट होगी, टाइप डेट, देन आईडी, टाइप एक्चुअली होगा कलर है, हम क्योंकि फेवरेट कलर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ आएगा कलर, राइट, फॉर फेवरेट कलर। अब ये आईडी में क्या आएगा, फेवरेट कलर ही आएगा, सॉरी, फेव कलर। अब नेम में भी फेवरेट कलर ही आएगा एक्चुअली, फेव कलर। हो गया। देन अब कैसे, बी आर, अगेन बी आर, फील्ड सेट को क्लोज कर दो भाई, अब हमें फिर से ओपन करना है फील्ड सेट, फील्ड सेट ओपन हो गया। देन क्या करना है, लीजेंड, ये कट करें, यहाँ से क्या आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पे, लीजेंड में लिखना क्या, हम प्रेफरेंसेस लिखते हैं, प्रेफरेंसेस, ठीक है, प्रेफरेंसेस से तो क्लोज होते हैं। देन क्या करना, लेबल फॉर ब्राउजर के लिए, ब्राउजर, ब्राउजर, क्या है, प्रेफर्ड ब्राउजर लिखना है यहाँ पे हमें, ठीक है, लिखते हैं प्रेफर्ड, प्रेफर्ड ब्राउजर, बी आएगा एक्चुअली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वी, ब्राउजर। ओके डन। देन इनपुट फॉर ड्रॉप डाउन मेन्यूज, इनपुट लिस्ट आएगा एक्चुअली, यहाँ पे टाइप नहीं आएगा, लिस्ट, ब्राउजर आएगा, ब्राउजर, ओके डन। अब क्या लिखते हैं, आईडी, आईडी ब्राउजर आएगा, नेम ऑल्सो ब्राउजर, ओके, हाँ, यानी लेबल हो गया, नेम हो गया, मैं प्लेस होल्डर अब बचा है, हाँ राइट, मुझे समझ आया, कुछ तो रह गया, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या, चूज अ ब्राउजर, चूज अ ब्राउजर, सॉरी, चूज अ ब्राउजर, ओके, बीकॉम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, डन, चूज अ ब्राउजर, एक्चुअली ये भी रहते हैं यहाँ पे, ओके डन। देन ऑप्शन, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बना रहे हैं हम, ऑप्शंस लिखो, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू गूगल, गूगल क्रोम, जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी पार्ट में बताया था, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, एक्चुअली फायरफॉक्स है तो मोजिला फायरफॉक्स, एक्चुअली वो क्रोम, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम डन। देन अगेन हमें ऑप्शन बनाना होगा, किसके लिए बनाना है, बट वो जस्ट अ मिनट, एक्चुअली यहाँ पे जो हमने लिखा है इनपुट लिस्ट, हमने यहाँ पे प्रेफरेंसेस लिख लिया या, और ब्राउजर लिख लिया,
देन हमें यहाँ पे डेटा लिस्ट फील्ड सेट, देखो रिकॉल पहले चीज देखते हैं। यहाँ पे हमने फील्ड सेट ओपन किया। एक चीज और, हम यहाँ पे इसे क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा कोड हमारा शॉर्ट हो जाएगा। देन ओपन अगेन फील्ड सेट, हमने यहाँ पे लीजेंड लिखा प्रेफरेंसेस के लिए। देन द लेबल फॉर ब्राउजर, देन इनपुट लिस्ट ब्राउजर, इनपुट लिस्ट ब्राउजर। देन अब हम यहाँ पे डेटा लिस्ट बनाना है, बिकॉज डेटा लिस्ट, क्योंकि हमारा ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यूज के तो डेटा लिस्ट आएगा। वही मैं सोच रही थी, कुछ तो मिस हो रहा है मुझसे, वो ये मिस हो रहा था हमारा। नाउ डेटा लिस्ट में अब हम आईडी तो ब्राउजर ही लिखेंगे। ब्राउजर डन। अब क्या हमारा ऑप्शन, ऑप्शन क्या है हमारा, वैल्यू ब्राउजर है, सॉरी वैल्यू गूगल क्रोम है। देन ऑप्शन, ऑप्शन में वैल्यू क्या आएगा, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला, दिस इज यार ब्राउजर एक्चुअली, फायरफॉक्स, सफारी भी और एज भी हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या लिखना है हमें, सफारी। इसलिए हटा दो। इसको कॉपी करते हैं पहले हम, देन प्रेस एंटर, देन कॉपी पेस्ट हियर। सफारी कीजिएगा आएगा एज। ओके, द डेटा लिस्ट, br, then the label for the rating। अब हम रेटिंग के लिए भी ये चीज बनाएंगे। रेटिंग हो गया, रेट आवर सर्विस, कि हमारी सर्विस को कितना अच्छा बताएं कि एक्चुअली क्या रेटिंग देंगे। रेट और सर्विसेज, सर्विस एक्चुअली सर्विसेज, सर्विस, ठीक है। अब देन इनपुट, इनपुट में क्या आना चाहिए, पहले टाइप लेते हैं रेंज। फिर आईडी भी, रेटिंग होगी आईडी तो, रेटिंग, देन स्टेप 1, देन br, br फील्ड सेट फॉर्म है। फील्ड सेट क्या हमें, हाँ अब हर एक फॉर्म में बटन भी होता है तो हमें बटन भी बनाना है। बटन सबमिट लिखते हैं इस बार, रजिस्टर तो कल भी लिखा था, आज हम लिखेंगे सबमिट। टाइप तो सबमिट ही रहेगा कि फॉर्म तो सबमिट के लिए बन रहा है एक्चुअली। ओपन कर लेते हैं। देखो इसकी फॉर्मेटिंग अभी अच्छी नहीं है ना, लेफ्ट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नाउ कैन सी हियर, अच्छा है ना। Then the click on the show preview right side on the VS Code. Amazing. पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली क्या है यहीं से, फिर इसका देखते हैं। चलो पहले हम देखते हैं कि इसका वर्क क्या है। Now you can also see survey form, personal detail, name, date of birth, फेवरेट कलर, मतलब कि ये हमारे कलर पिकर है, प्रेफरेंसेस, रेट आवर सर्विस,
then submit here. Then and then you can see title क्या survey form. नेम लिखते हैं अब यहाँ पे नेम लिखते हैं रेशमी रेशमी इसकी डेट ऑफ बर्थ देखो मैंने कहा ना कैलेंडर बनेगा अब मंथ डेट देन ईयर क्लिक ऑन इट 18 अपने आप भी आगे देखो अगर हम ये चूज करते हैं डेट चेंज हो रही है तो हम भी देखो ये भी चेंज कर सकते हैं मंथ फरवरी ऐसे ईयर भी चेंज हो सकता है हम यहाँ पे अपना वो रखते हैं इस पे क्लिक देखो यहाँ पे हमें देखा था एक चीज शो डेट पिकर 18 कर लेते हैं टुडे color picker now you can also write the color also RGB की फॉर्म में ना ये देखो ब्लू कलर आ गया then you can also choose like this blue violet pinkish sky blue yellow so I'm choose this and you can also the RGB value 5255251 ये क्या होता है एक्चुअली कॉपी के लिए कि एक्चुअली वो कलर है कौन सा देखो है ना चलो चूज अ ब्राउजर ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जस्ट अ मिनट ड्रॉप डाउन मेन्यू क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं जस्ट अ मिनट एक बार फिर से हम कोड देखते हैं कहीं पे मिस्टेक है शायद देखो क्या तो दिख ही नहीं रहा ना मैं उन्होंने लिखा है ड्रॉप डाउन मेन्यू कोई बात नहीं एरर्स तो आते ही हैं और एरर्स आने इम्पोर्टेंट होते हैं एक्चुअली सो हियर सॉरी data list id browsers name data list id browser ऑप्शन वैल्यू गूगल क्रोम है ठीक है मोजिला फायरफॉक्स ये हटा दो ये हमारे में है ही नहीं फॉर्म डॉक्यूमेंट किया था ना उसी की वजह से आया एक्चुअली देखते हैं कुछ चेंज नहीं आया और देखते हैं डेटा लिस्ट है BRBR लेबल फॉर रेटिंग डेटा सर्विस फील्ड सेट देखते हैं कुछ हो स्टेक फील्ड सेट ओपन हाँ यहाँ से बता आईडी रीजन प्रेफरेंस फॉर ब्राउजर प्रेफर्ड ब्राउजर लेबल इनपुट क्या है लिस्ट ब्राउजर आईडी लिस्ट ब्राउजर आईडी ब्राउजर नेम ब्राउजर है प्लेस होल्डर चूज अ ब्राउजर द डेटा लिस्ट आईडी ब्राउजर्स है ठीक है देखते हैं नहीं हो रहा कुछ देखते हैं क्या है फिर से लिखा तो ठीक है हमने डेटा लिस्ट है आईडी ब्राउजर्स है ऑप्शन वैल्यू गूगल क्रोम राइट
then option Mozilla, option Safari, then the Edge, data list close here, BR, body form में then बताना है ना, then the field set, BR, ये कौन सा BR लगा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं, एरर नहीं आएगा इतना तो श्योर है, एक बार फिर से देखते हैं करके कुछ, नहीं हो रहा है, ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं, नेम फिल कर दिया, कलर पिक कर लिया, सफारी लिखते हैं, सफारी, फायरफॉक्स लिखे थे, कुछ मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, ओके, सो चलो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आया बट यहाँ पे देखो कोड तो हमने देखो ठीक लिखा है एक्चुअली, कोई गलत नहीं है, सही है हर एक चीज, हमने अभी देखा फिर से है ना, तो आप ये बताना कि ड्रॉप डाउन क्यों नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में, देन आई विल टेल यू द टुमारो लेक्चर, ओके, इतना तो हमें आगे समझ में कि लिखना, अब देखो एक्चुअली ऐसे ही होता है, नॉट एन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं अगेन, देखो ये ऑप्शन आ गया, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, एक बार में कोई चीज नहीं आती है, try and try again, okay. Okay, so you have leveled up your skills by using the advanced form features. In this next lecture, we will explore how to enhance form further with accessibility and styling technique. तो हमने यहाँ देखो देखो पिकर, ये भी एक हमने नई चीज सीखी, कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं, द कैलेंडर को, there is a sidebar like this, then submit form. So here मैं काफी नई नई चीज सीखी, वो चीज भी ध्यान रखनी चाहिए हमेशा. So see you to the next lecture. Thank you.